السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین افتخار۔ میں ہوں محمد خالد۔ شامل کریں گے ہیڈ لائن۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور دادو سمیت ساحلی پٹی پر آندھی کے ساتھ تیز بارش کی پیش ہوئی۔ رات کے پورٹ قاسم اور اطراف میں مینا برسا، پٹ پر لنگر انداز جہازوں اور لانچوں کو طوفانی ہواؤں سے خطرہ۔ پورٹ قاسم انتظامیہ نے جہازوں اور لانچوں پر اضافی لنگر باندھ دیے۔ سندھ، بلوچستان کی ساحلی پٹی کے لیے الرٹ جاری۔ سمندر میں موجود ماہی گیروں کو واپس بلا لیا گیا۔ موسم میں آپ نے کہا بارش کا سلسلہ تیز ہوگا۔ ہر دکان کے اندر 4-4 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اوور فلو ہوا ہے، کبھی اس میں پانی نہیں جائے گا۔ لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، شہر کے 500 سے زائد چھوٹے نالوں میں سے کئی صاف نہ کیے جا سکے۔ PTI کے خرم شیر زمان نے ویڈیو شیئر کر دی۔ ناگن چرنگی کے دکاندار دکانیں ڈوبنے کے خوف کا شکار، فلیٹوں کے مکین خوفزدہ، نالے کے اندر اور باہر کچرے کا ڈھیر، انتظامیہ غائب۔ علاقہ مکین کہتے ہیں نقصان کے باعث لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صوبائی مشیر برائے بحالیات غلام رسول کی ہدایت پر نکاسی کے لیے پیش کی انتظامات۔ کراچی اور دیگر اضلاع میں مزید ہیوی ڈیوٹی ڈی واٹرنگ پمپ بھیج دیے گئے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا میں مبتلا 39 افراد انتقال کر گئے۔ ملک میں ایک دن میں 1742 نئے کورونا کیس رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹے میں 6035 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.30% رہی۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کے بعد بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 58 کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سیزن میں مجموعی طور پر 275 کیسز اور 3 افراد انتقال کر چکے۔ پشاور میں ڈینگی کے مزید 245 کیس رپورٹ ہوئے۔ اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان۔ اوبرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی۔ ذرائع نے بتایا پیٹرول کی قیمت 5 روپے 25 پیسے، ڈیزل میں 3.5 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کریں گے۔ آیا ان کو اس طرح آگ لگی ہے ان 3 دنوں میں، کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے۔ تو شہباز شریف کی کرپشن تھی، اس کے بچوں نے اس کو اللہ نہ کرے فائدہ اٹھایا، تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوگا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میری قبر کے جانے جب بعد بھی میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہو گئی، میری لاش نکال کر کھمبے پہ لٹکا دی۔ عمران اور چیلوں کا جھوٹ بے انتقام ہو گیا۔ 3 سال مجھ پر سنگین الزامات لگائے، ایک دہلی کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس کا حکومت میرے اور خاندان کے خلاف برطانوی ایجنسی گئی۔ الزامات کا پلندہ لندن بھجوایا گیا، مجھے بدنام کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے۔ NCA نے تحقیقات ختم کر دی، عدالت نے بھی ٹھپا لگا دیا۔ فیصلے کے بعد انہیں آگ لگ گئی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے۔ عجیب سی بات ہے، بیٹا بری ہو گیا، میں بری نہیں ہوا۔ ڈیلی میل پر لگائے گئے الزامات پر بھی مس فائر ہوا۔ برطانیہ میں ہونے والی تحقیقات میں کچھ نکلتا تو کرمنل کیس بن جاتا۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ مسلسل جھوٹ بولا۔ یہ کیس نہ تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا، نہ ہی اس میں شہباز شریف کسی طور کے اوپر اس کیس میں شامل۔ شہباز شریف نے 1 گھنٹہ 10 منٹ مسلسل جھوٹ بولا۔ شہباز شریف NCA کی انکوائری میں نامزد نہیں تھے۔
उनके खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान में हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया से अपील है शहबाज शरीफ से मुतालिक मुकदमात रोज सुने जाएं। शहबाज शरीफ से मुतालिक फेक न्यूज पर शहजाद अकबर केस दायर कर रहे हैं। मरियम नवाज मुल्क में इसलिए हैं कि उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं। हमने 1 घंटा भी आंखें बंद की तो वो जूते छोड़कर भागेंगे। इंटरनेशनल शादी करो, ये अल्लाह ने बना दिया आपको। अल्लाह ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया, मुबारक हो। मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ को बरतानवी अदालत के फैसले पर मुबारकबाद। हंसते हुए ताली भी मारी। सहाफियों से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा इस हुकूमत में मियां साहब को वापस लाना बेवकूफ़ी होगी। मेरे पास किसी की पर्सनल वीडियो नहीं, मोहम्मद जुबैर की ज़ाती ज़िंदगी से कोई मसला नहीं, वो अब भी मेरे तर्जुमान हैं। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। लड़ना है तो सियासी तौर पर लड़ें। सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। बाकी इमरान खान इस मुल्क में AVM मशीन इसलिए चाहता है कि रोज रोज ये खत्म हो जाए, बात के धांधली हुई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है तो आईना पाकिस्तान ताया को भी साथ लाएं। फयाजुल हसन चौहान बोले शहबाज शरीफ कहते हैं सबसे पाकिस्तान एजेंसी ने फैसला दिया, मोमिन पाक कुतुबगौस बन गया। शहबाज शरीफ 25 तरफ की मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें जिसकी वजह से मुस्तकिल तारीख है। 2008 और 9 में $24,30,000 मालियत की 24 जाली TTs भेजी। TTs हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में लगवाई। प्रोग्राम पावर प्ले में TT स्कैंडल के बादामास गवाह आफ्ताब महमूद के अहम इंकशाफात। कहा TT के भेजे जाने वालों को मैं जानता और न उन्होंने मुझे रकम दी। पाकिस्तान में मनी एक्सचेंज का कारोबार करने वाले मेरे कजन शाहिद रफीक ने ही अकाउंट्स, बेनिफिशरी और जाली TT वालों के नाम भेजे। शाहिद रफीक ने कैश लिया, बाद में TT के जरिए काला धन सफेद किया। रकूम की तमाम तरसील बैंक के जरिए ही की गई। 2013 में जो सड़क बनती थी नून लीग के टाइम पे, आज से ज्यादा महंगी है। सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है, तो मैंने FIO को ऑर्डर दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें। आपको सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा तो वेबसाइट पे है। नून लीग के दौर में महंगी सड़कें बनी, करप्शन हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FIA की तहकीकात का हुक्म दे दिया। झलझौला बेल शहरा की बहाली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा सड़कें बनाना बड़ी बात नहीं, सस्ती और अच्छी बनाना कमाल है। आज 20 करोड़ बजट के साथ 30 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। सोचे मासी में कितना पैसा बनाया गया। आप सिर्फ इलेक्शन का सोच रहे हैं तो मुल्क अभी आगे नहीं बढ़ सकता। विफाक का पूरा जोर इलेक्शन जीतने पर हो तो बलूचिस्तान पीछे रह जाएगा। इंतखाबात से तकरीबन 2 साल या 1.5 साल कबल जो अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही हैं, आज से ही प्री पोल रिगिंग के इंतजाम किए जाए। नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात और EVM धांधली की तैयारी है। पाकिस्तान के अवाम को आगाह कर रही हैं, ऐवान में आपके वोट की इज्जत पामाल होने जा रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। विफाकी वजीर श्री मजारी ने कहा धांधली रोकने का वाहिद तरीका EVM है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के धांधली के इल्जामात को भी EVM नहीं रोका था। आइंदा इलेक्शन में PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, किसी MNA और MPA को नहीं तोड़ा जा सकेगा। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब। कहा इमरान खान अमेरिका इसलिए नहीं गए कि कोई उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ ने लड़ाई से बचने के लिए दोस्तों की कुर्बानी दी। परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह और फातमी की कुर्बानियां दी, फिर नवाज शरीफ की कुर्बानी मांगी। नवाज शरीफ ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा बल्कि ओहदे खोने पड़े। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अफगान जंग हारने का एतराफ। अमरीका अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग हार गया। जनरल मार्क मिली अफगान जंग हिकमत अमली की नाकामी थी। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अफगान जंग
माजी के कई अहम फैसलों का मजमूई असर है। जनरल मार्क मिली अफगानिस्तान में जंग उन शराइत पर खत्म नहीं हुई जो हम चाहते थे। हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी में जनरल मार्क मिली ने एतराफ किया। कमेटी इजलास में वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने भी हाजिरी दी। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मशक़ें दुरुज़बा 6 का आगाज। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेज के दस्ते 2 हफ्ते इंसदादी दहशतगर्दी की मशकों में हिस्सा लेंगे। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और रूस के कौमी तराने बजाए गए। तकरीब में हरबी साज़ो सामान का मुजाहरा किया गया। इनकम टैक्स गुज़ारे दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। FBR ने कर दिया खबरदार, कोई तौसी नहीं की जाएगी। FBR आयरस सिस्टम रवाने से चल रहा है। 28 सितंबर को 1.5 लाख से ज्यादा गुज़ारे दाखिल किए गए। लाहौर के सेशन कोर्ट में मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के हट जाने केस की समाअत। अदालत ने मीशा शफी को जेरा के लिए वालिदा और शौहर के हमरा 19 अक्टूबर को तलब कर लिया। कहा तीनों गवाहां ने 2019 में बयानात रिकॉर्ड कराए मगर जेरा न हो सकी। अली जफर ने इल्जामात पर हट जाने का दावा दायर कर रखा है। शूटिंग में प्यार, मोहब्बत, निकाह, लव स्टोरी रियल लाइफ में नहीं है। शूटिंग में जो कुछ होता है वो झूठ होता है। सेशन कोर्ट लाहौर में तकरीबी निकाह केस अदाकारा रो रो कर अदालत में सफाइयां पेश करती रहीं। अदालत ने चीख कर बात करने से रोक दिया। बाद में मीरा ने कहा शूटिंग को निकाह का नाम दिया जा रहा है। फिल्मों में प्यार, मोहब्बत, निकाह सब झूठ होता है। मुझ पर मुकदमे की वजह से इंडस्ट्री का अरबों सरमाया डूब गया। पाकिस्तान का दौरा न करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुआफी मांग ली। चेयरमैन एन वॉटमोर कहते हैं कि पाकिस्तान में हर उस शख्स से माजरत चाहते हैं जिसको फैसले से तकलीफ पहुंची। आइंदा साल इंग्लैंड टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, बोले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। थोड़ा सा अटैक की कोशिश और ड्रॉप कर दिया। Tries to catch this one. Can they catch it? Oh no, they. full toss. It's a dispatch yard. ये नो बॉल भी थी और इस तरह नॉर्दर्न ने मैदान मार लिया। नेशनल T20 कैश ड्रॉप तो मैच ड्रॉप। नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद नवाज की निस सेंचुरी, सदर्न पंजाब की मुसलसल चौथी शिकस्त। सिंध की लगातार तीसरी फतह, गुलिस्तान को 77 रन से हरा दिया। इमाम 11 176 रन के ताकुब में 98 रन पर ढेर। जाहिद महमूद के 3 और शाहनवाज धानी के 4 शिकार। कप्तान सरफराज की नाकाबिल शिकस्त 41 रन की नींद। इस बार बाउंस आउट करने की कोशिश की, 4 रन मिल गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। दोनों के दरमियान भी एक मुकाबला चल रहा है। अच्छा मैचअप है ये हैदर और नसीब शाह का। पाकिस्तान क्रिकेट का जवान खून जोश मारने लगा। नेशनल T20 कप में नसीम शाह और हैदर अली आमने सामने। दोनों में गेंद बल्ले की जंग के साथ साथ लफ्जी तकरार भी हुई। शाहीन ने भी एंजॉय किया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2047 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 204 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।